Hi everyone, welcome to your current affairs class. This is Sonali Mehra, faculty at Mentor IAS, and on behalf of Mentor IAS, I welcome you to this discussion class. The topic that we are going to take up today is related to urbanization and associated issue. Every year in your mains examination, you will find one question coming directly from this topic, and sometimes you will be finding question in your mains examination which are indirectly related with this topic. So in this class, we will be diving deep into the topic, and also we will be talking about the associated dimensions of this particular topic. Okay, so let us begin our discussion and let us start our discussion from this question in our hand. सबसे पहले तो क्वेश्चन पर जाने से पहले हम टॉपिक पर ही बात कर लेते हैं. टॉपिक क्या है? टॉपिक है urbanization and associated issues. Okay, and associated issues. And if you talk about which part of syllabus this particular topic comes, तो ये GS1 में इंडियन सोसाइटी में इसको हम कवर करते हैं. कई बार आप इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन. Right, so that means if you see this topic is not a kind of topic जिसको कि एक ही सिलेबस के पार्ट से आप लिंक कर सकते हो. in different parts of the syllabus you can actually link. मैंने फिलहाल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक पार्ट में यहाँ पे लिख दिया है. Now let us start our discussion. And in order to better understand our discussion, let us start with the question. Question is, why urban development needs to be both inclusive and sustainable? Now these are the two things you need to focus. Okay, this is the first one. Urban development is the first thing. Urban development. और दूसरी चीज जो आपको फोकस करनी है that is inclusive and sustainable. जब आप इन दोनों चीजों को सामने रख करके अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको अर्बन डेवलपमेंट क्या है वो भी समझ में आता है, और क्या चीज का नीड है जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से हम इसको इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बना सकते हैं वो भी समझ में आता है. यहाँ पर आपको ये भी समझने में हेल्प करता है कि आपके पास में क्या इश्यूज हैं. जो हमने एसोसिएटेड इश्यूज की बात की, तो अर्बन डेवलपमेंट को समझने के साथ साथ आप उसके आसपास के इश्यूज को भी समझ जाते हैं. Right, so let us start our discussion and then let us one by one talk about inclusive and sustainable part of urban development. So यहाँ से बिगिन करते हैं. यहाँ से यानी कि एक टर्म है हमारे पास that is poverty paradox. यहाँ से सब कुछ बिगिन करते हैं. In order to understand this entire scenario, this situation in a better position, let me take you back to the पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के पीरियड की बात कर लेते हैं. 1991-92 से हम बात कर लेते हैं. Why we are starting with this particular point? Because when we talk about post LPG reform period in terms of the economic trajectory of India, तो हमने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि जो अर्बनाइजेशन का यू कैन से पेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है. सो द पेस हैज सिंपली गॉन अप आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या पोस्ट इकोनॉमिक इंडिया में. राइट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड टुडे दैट राइट फ्रॉम द लास्ट डेकेड ऑफ 20th century till this very point of time 2025, what is the entire trajectory of urban development looks like in India, right? And for that you need to start from the very basic thing or the very basic outcome of economic reforms in India, and that is जब economic reforms India में हुए तो हमने देखा कि economy ने grow किया. That means there was growth, economic growth. Yes, ये जो economic growth है इसका impact दो different set of लोगों के ऊपर पड़ा. So we have the impact of economic growth on two different set of people. First is that particular set which we usually call as informal. चलो पहले formal की यहाँ पे लिख लेते हैं बात. Which we call as the formal sector, and other one is the informal sector. Correct? Informal sector. There are lot of differences between the two, but if we highlight the major one, तो आप ये कह सकते हैं
फॉर्मल सेक्टर इज द वन वेयर वी हैव जॉब सिक्योरिटी, जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है उसके बीच में एक अग्रीमेंट है बेस्ड अपॉन विच वी आर सीइंग दैट बोथ द पार्टीज आर सिक्योर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इनफॉर्मल सेक्टर तो हम देखते हैं यहाँ पर वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट नहीं है, दिस इज एब्सेंट, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. So when we are saying that job security part is not present here at the informal or in the informal sector, lot of issues started to come up और वो धीरे धीरे हमने issues को notice करना शुरू किया. So in this entire time span we are trying to understand what has happened with both these sectors. ठीक है. So what is happening in the formal sector like banking sector, IT sector, in all these sectors we started to see that people's life or we can simply say, मैं यहाँ लिख देती हूँ, quality of life started to move in the upward direction. So writing in this manner, upward direction. But at the same time, we are also observing that people engaged in the informal sector. So informal के लिए let us use a different pen so that हम differences को clearly understand करें. People engaged in the informal sector. Number one, the number of people engaged in the informal sector are simply going up. ठीक है. Number two, because we have already discussed this, job security is very low or very less here. Now if more people are involved in the informal sector, so more people are also dealing with the job insecurity part. Insecurity, it is not security, insecurity part. They are also dealing with it. When there is job insecurity around us, what is going to happen? The spending capacity of individual is also going to affect spending or expenditure capacity, spending capacity, यानी कि पैसा खर्चने की capacity जो है that will also be limited with this particular segment, right? What it will result into? It will result into the less access to what? Access to education, access to medical facility. I'm writing in short here, right? Overall quality of life that will fall, that will be less, that access will be less. So now this is not happening with one person, this is happening with lot many families falling into this particular sector, and not only with one family, the entire generation or the coming generations will be pushed into a big trap, that is poverty. Poverty is something which already is coming from all these factors working together, and not only affect one single individual, but it affects the entire family generation or the future generation. So to conclude, understand that right from this point of time, this period of time, we are seeing that these two set of people are basically moving apart. The kind of disparity that we are seeing between these two set of people is simply growing up, where both the sectors or both the set of people are contributing to the economic growth. Yes, both are contributing in their own way. Both are contributing in their own way. A person engaged in bank or working in the banking sector, IT job professionals, or I would simply be saying anyone who is skilled enough to secure a professional job. They are getting good payments also, they have a job security also, right? But there is another set of people, and a very big set, I would say, a very big set of people who is you can say employed as a construction labor and such kind of work. The point is they are also not documented well. So this set of people is also contributing to the economic growth in their own manner. So economic growth anyway is taking place, but parallel to it, can we say that poverty is coming down? No. So what we are observing is that poverty parallelly is also going up. Instead, what should be the scenario? Both the things should work in inverse relation. This entire situation is what is called as poverty paradox. So you need to start it from this particular point here. Now that we have understood that what exactly is the poverty paradox, let us get into some more details. Some more details like what are the basic needs, necessities or amenities anybody would be needing, right? जैसे कि साफ घर, साफ environment around your घर and clean water, right? These are the basic things, including education, access to education.
मेडिकल फैसिलिटीज, अगर आप बीमार हैं तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप वहाँ से अफोर्डेबल रेट्स पर मेडिकेशन लेकर के अपने आप को क्योर कर सकते हैं, इजी एक्सेसिबिलिटी है आपके पास में, ठीक है। क्वालिटी हाउसिंग है, क्वालिटी हाउसिंग इंक्लूड्स प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर फ्लोर साइज, ऑल्सो नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन अ हाउस शुड बी सच कि वो हाउस या वो जो घर है उसमें पर पर्सन जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो उसको मिले और बिल्कुल क्रैम्ड कंडीशंस में लोग ना रहे। दिस आर द बेसिक नीड्स। What we are seeing now going on is people working in the informal sector are not having, or basically they are fighting for these basic needs itself. मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी, क्वालिटी हाउसिंग। मैंने शॉर्ट में 3 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। क्वालिटी हाउसिंग, so these people are not getting this. Now the problem does not stop here. Problem actually starts from this point. If you are not getting these basic things, if you are not getting these basic things, it will spiral up into something even more greater and more dangerous thing. What is that? Because of lack of quality education, obviously the number of opportunities that would otherwise fall in making your future bright will not be now coming. अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज जॉब के टर्म्स में नहीं आएंगी, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू यू कैन से अफोर्ड अ क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ मतलब ऐसा जीवन, ऐसी लाइफ जहां पर बीमार होने पर आप अच्छी मेडिकल हॉस्पिटल में आप मेडिकल सर्विसेज ले सकते हो, अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो, आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, राइट आप इंश्योरेंस अफोर्ड कर पा रहे हो, इस तरीके की चीजें। सो इफ दिस इज नॉट हैपनिंग, एनीथिंग ऑफ दिस नेचर इज नॉट गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट इज क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी। अगर आपके जिस एरिया में, इफ यू आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, आपके पास में इजी एक्सेसिबल हॉस्पिटल नहीं है, लेट अस से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, एंड द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इट्स वेरी टफ टू रीच टू द in fact to the nearby hospital, maybe because of the roads are not well built, या फिर द स्ट्रीट्स आर वेरी नैरो, है ना, सो दैट एम्बुलेंस भी इजिली आ सके जा सके, सो दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, वी कुड बी लूजिंग आवर लव्ड वंस एज वेल। that is also taking place, or that is also happening here. Quality housing, वो तो मैंने अभी बताया, when quality housing is not there, proper ventilation, proper space required is not there, जो एक proper size है kitchen का वो ना होने से, again when we are cooking food, everyone who is in the close vicinity is also going to get affected with it, right? women are spending more time in the kitchen, और अगर वहाँ पर kitchen जो है again वो आपके पास में let us say कि जो एलपीजी सर्विसेज हैं उसको आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगेन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इनकम इटसेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन द चूल्हा इटसेल्फ, दैट इज अगेन गोइंग टू अफेक्ट women's health also, not only women's health but all the people who are living in the house, especially children, ठीक है। सोने के लिए आपके पास में राइट स्पेस नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, अगेन टॉक लॉट अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ of the children, family member, especially women. So these are the basic amenities. If these basic amenities are not here or not with anyone, it is again going to result into lot of haphazard development. तो development तो आप करेंगे. Anybody who is migrating from rural area to urban area in search for a good opportunity, good job, good livelihood, and if they are not able to afford all these things, they would be living, either they are going to share their room with four more families, or either they are going to live next to the slum, or maybe the part of slum itself. The informal settlements, in those settlements already these conditions are there. Now these conditions along with increased rate of crime is going to create even more vulnerability for the people, right? So what are we seeing? We are seeing that a person growing in such condition obviously is going to have a very different set of you can say skills तो नहीं हम exactly बोलेंगे, but the mindset would be very very different. You are simply struggling throughout your bright years, where you could either be getting a very good position if you are well skillful, getting a good education at the right time and things like that, but now you are losing
all at that particular point. So that is why I'm saying अगर basic needs नहीं है ये सब चीज़ों की वजह से a big problem that could run in the family for lot many generation can take place. So our focus in this discussion is on this part. Why is this informal sector widening after the LPG reforms that we are seeing? एलपीजी रिफॉर्म होने की वजह से इकोनॉमी ओपन होता है. इकोनॉमी तो पहले से इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का ओपन ही है, बट इन ट्रू सेंस इफ वी सी तो वो वहां पर होना शुरू होता है. लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड दीज बिग सिटीज, दीज बिग स्पेसेस. लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग, राइट? So we would require more hands at work so that we could be working together to make these spaces even more accommodated. But ये जो accommodation हम देख रहे हैं, this is again coming at a cost. The one who is able to afford this space, the buildings, the high-rise building would be the one who would be living there. The one who are working day and night coming from the informal sector are not able to live into those high-rise buildings because they cannot afford living there. What are we observing? That even though the city is expanding, those high-rise buildings are coming up very fast, right? But there is a big set of population who has lot contributed to the development of the city but is not able to live into those buildings, and the kind of lifestyle they are living that we have already discussed. So lot of issue is going on, right? Now that we have this basic idea about this topic with us, let us now first of all look at these pictures. Now just look at these pictures. These pictures are clearly telling us as to what happened to our cities whenever there is this incessant rainfall. जब भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, recent months में भी अभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है 2025 में, आप देखिए इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी सिटीज़ जो थी वो एक हॉल्ट कंडीशन पर आ गई, एकदम से रुक गई लाइफ वहाँ पे. रोड्स वर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड. जो लो लाइंग एरियाज हैं उसमें तो पूरे तरीके से फ्लडिंग हो चुका. बहुत सारी ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, बहुत सारी लाइफ का लॉस हुआ, राइट? There was lot of pressure on hospitals, right? So and if you see the entire situation, this is not something which you can say has happened all of sudden. Lot of reasons are there जिसकी वजह से ये धीरे धीरे सिचुएशन पाइल अप होती है, इस तरीके की सिचुएशन पाइल अप होती है, that lot of people are suffering. One of the major reasons why Indian cities and across the world also different cities जहाँ पर सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं इंडियन सिटी जैसे वो सफ़र करती हैं, बिकॉज ऑफ दिस अनचेक्ड माइग्रेशन एंड ऑल्सो बिकॉज द माइग्रेशन रेट इज आउट पेसिंग द सेटलिंग रेट. और सेटलिंग रेट मतलब जो लोगों को यहाँ पर अकोमोडेट किया जाना चाहिए उनको हम उस तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पा रहे. रिसोर्सेज आर नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, सो पीपल आर सिंपली फाइटिंग फॉर इट. लॉट ऑफ, जैसे हमने बोला, क्राइम इज अगेन कमिंग आउट ऑफ इट, है ना? रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, उस वजह से हो रहा है. सो दिस इज वन पिक्चर दैट वी आर सीइंग. ये क्या करता है सिचुएशन, ये ऑलरेडी जो एग्रेवेटेड सिचुएशन है उसके ऊपर और उस सिचुएशन को और एग्रेवेट कर देता है. देन लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर. नाउ द डिफरेंस बिटवीन these pictures and this picture is that ये पिक्चर एक इन जनरल सिटी के सिचुएशन को बताती है जहां पर everyone is affected, no matter from what category you are coming from, high income, low income, middle income. So everyone is getting affected here, but specifically if you look at these two pictures, these are the pictures coming from those areas in the cities where the people coming from or the people who are the part of informal sector are living. तो informal living यानी कि slums की अगर हम बात करें, these are those areas. Now you can clearly see that these are the ones who are getting affected with this kind of disaster सबसे पहले, right? And these are the ones जिनको जब रिलीफ की भी हम बात करते हैं दैट विल कम इन द लास्ट इटसेल्फ. एक्सेसिबिलिटी की बात आ जाती है, राइट? जिन सिचुएशंस में वो रह रहे हैं वो ऑलरेडी ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें लिविंग की कंडीशन तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. नाउ बिकॉज ऑफ सच इंस्टेंस आउटब्रेक ऑफ डिजीज, मल्टीपल डिफरेंट तरीके की जो डिजीज है वो आउटब्रेक पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं. कंटामिनेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है. एंड अगेन आपके पास एक्सेस अगर अच्छा नहीं, ऑलरेडी सिटीज अंडर द प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको देखा जाएगा तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हमारे ऑलरेडी प्रेशर में हैं. सो दीज आर द पीपल हु विल बी एट द एंड ऑफ दैट सर्विस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू go to the or visit the private clinics or the private hospitals. Obviously the fee is very high there, so they are simply waiting in the lines to get themselves admitted to the public hospital. लेकिन public hospital पे pressure बहुत ज़्यादा. What we are clearly seeing from this particular one, लोग तो हैं जो facilities को लेना चाहते हैं but affordability नहीं है.
सो द एंटायर इशू जो हम कहते हैं ना अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएटेड इशू, वो एसोसिएटेड इशू में सबसे पहले तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, इस तरीके की स्लम डेवलपमेंट का इशू है जो अनचेक्ड तरीके से हो रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन का इशू है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट है। बिहेवियरल चेंज तो एक प्रॉब्लम है ही है जो हम इंडियन सोसाइटी में फील करते ही हैं, बट वो और ज्यादा इसकी वजह से बढ़ जाता है ना। ऑल दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस विच और डिफरेंट यू कैन से फैक्टर्स विच पुश poverty even more among this set of people. Okay, now let us अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमारी इंडियन सिटीज अभी डील कर रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का हो जिसको अभी हमने पिक्चर में देखा, जैसे रेनफॉल हो, अर्थक्वेक सिचुएशन हो, देन वीक गवर्नेंस, जब हम लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं ठीक से वो फॉलो नहीं किया जा रहा या लोग उसको ठीक से नहीं मान रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं वीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखती है क्राइम रेट बढ़ने के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ना होने की वजह से कोई तरीके का न्यूसेंस क्योटिक कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली पोवर्टी पैराडॉक्स, इसकी तो अभी हमने बात की ही, पीपल आर डीलिंग विद इट। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट that we all should be knowing when you talk about the urban worker population or the working population, 50%, approximately 50% of the urban working population comes from this informal sector. So if one half we can say of working population in the urban area is coming from this particular segment which is not getting these basic amenities at all, how can we expect that they are also contributing to you can say growth of the entire city? That is why we are saying that in fact cities are growing, but that is not growing at any level at the equal, or you can say मतलब जो pace है ना उसका, that is not at all matching with everyone sharing the same space. Space तो सब लोग same share कर रहे हैं, whether you are coming from high income or low income, but the impact or the fruits of this development not everyone is fetching at the same rate. That is the problem. Then worker displacement, marginalization when you see will be happening and will continue to happen when all these things will remain unchecked. कौन से चीजें, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है उसको अनचेक रखा गया है, why are we not having sufficient you can say facilities to accommodate so many people. दूसरी चीज ये माइग्रेशन को हम किस तरीके से रिड्यूस करने की तरफ बात कर सकते हैं, that should be another important dimension we should be looking at. Why people are not getting sufficient livelihood opportunities in the rural areas itself, and now even if they are moving towards the urban areas, then why they are not able to afford a decent kind of living, affordable housing, right? That is another area. Why we do not have the sufficient data available with us so that we could be making the policies keeping in mind the need of such people as well. These are the things that we need to look at. So marginalization का मतलब है that people who are already suffering, they are again pushed back to the borders or to the margins of the development. So at the center always of development will be the people who are able to capitalize at all the resources they are getting, right? Who are able to make more money, more income, they are having more resources and more resource accessibility they are having than compared to those people who are, you know, standing in the last of this particular row. That is the problem. Then informal employment that we are seeing, rising pollution, right? So unchecked development harms the environment. So we start to see that in some part of the city there is this big city, you can say big buildings coming up. उसी के थोड़ा सा पास में अगर आप जाकर के देखेंगे, लॉट ऑफ स्लम्स आर देयर, एंड स्लम्स के ही बिल्कुल साइड में यू विल बी फाइंडिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ पर आपको डंप यार्ड्स मिल जाते हैं. सो पीपल लिविंग इन सच एरियाज ऑल्सो, वो लो लाइंग एरियाज भी होते हैं, कई बार बारिश होने से वो पूरा भर भी जाता है एरिया पानी से, लॉट ऑफ डिजीज आर गोइंग टू स्प्रेड. सो वन नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दिस इज this very idea of ignorance, that if we ignore these things because it is happening to one set of people only or one part of the city only, जब contamination होगा that will happen to each and everyone who is sharing the same space. So rather we should be more you can say you know responsive to such kind of things, to such kind of things coming up. तो pollution का जो problem है वो ऐसे करके ही ignorance से ही बढ़ रहा है, right? Then overburdened transport. Again, this is directly talking about the income inequality. People cannot afford even the private auto rickshaws. Private auto rickshaws में नहीं, आपने अपने लिए auto rickshaw किया and you are moving to your place.
You cannot afford एक दिन का 100 रुपी और 150 रुपी if you are going to and fro, अगर आप कर रहे हो अपने घर से अपने काम तक. So that is how tough the life in cities actually is. That is another thing. Then inadequate services, poor sanitation and water supply and housing shortage. तो ये तो हमने बात किया ही है. So these are some of the problems जिससे अभी हमारी cities जो है वो deal कर रही हैं. Now let us talk about this topic and let us break this down into these 4 parts. तो big picture क्या है इस topic को लेकर के, urban and urbanization and associated issues में. सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है अर्बन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को, जिसको काफी हद तक हमने भी समझा है. कुछ और एडिशनल चीजों से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. वंस यू अंडरस्टैंड दिस, देन वी हैव टू कम टू द अनदर पार्ट, अदर डायमेंशन ऑफ इट, पॉवर्टी पैराडॉक्स इन इंडिया. पॉवर्टी पैराडॉक्स तो हमने समझा, बट इन इंडिया उसको हम जिनी कोएफिशिएंट से भी बात कर लेंगे. वंस यू अंडरस्टैंड दिस, उसके बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी गिव्स यू द सेंस, द आइडिया एज टू हाउ सिटीज शुड बी. भले ही उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में स्लो है, लॉट ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स वी आर गेटिंग अराउंड वेरी आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी, जो हमने अपना प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया है, बट वी आर होपिंग कि हम कोई तरीके से सोल्यूशंस निकालते हुए इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव आइडिया, कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन. तो हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे. एंड फोर्थ जो इसका डायमेंशन रहना चाहिए, दैट शुड बी टुवर्ड्स सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ. तो इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पर जो सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ है, जिसमें इंक्लूसिविटी का आइडिया भी होना चाहिए, हाउ शुड इट लुक लाइक. So you can easily divide this topic into these 4 parts. Let us quickly start with the first part, that is urban poverty and inequality. सबसे पहले तो आप यहाँ पर 2 चीजों पे फोकस कीजिए. पहली चीज है अर्बन इनइक्वालिटी, सॉरी अर्बन पोवर्टी, एंड देन इज इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी की जब हमने बात किया, सो अर्बन poverty, let us break it down into 2 parts. Urban poverty is first one and second is inequality. So when we talk about urban poverty, पहले तो उसको समझेंगे एंड फिर हम inequality पर जाएंगे. inequality को अंडरस्टैंड करने के लिए we will be taking help of Gini coefficient. Okay, Gini coefficient. Let us first of all talk about urban poverty. क्या है by definition if we say? So it is a condition where the individual or a family in urban area, क्योंकि urban poverty की बात है, lack the adequate income. What is adequate income? Adequate income meaning उस particular city में अपनी cost of living जो आपकी है उसके लायक आपके पास में इनकम होना चाहिए. You should have sufficient amount of income that would help you and your family to sustain in that particular city. City always has a particular cost of living attached with it. Different cities का different cost of living हो सकता है. So if you see in city, you are paying your rent, you are paying your electricity, everything you are paying. वो हो सकता है कि अगर आप विलेज में या जहाँ पर आप रह रहे थे, टाउन में, विलेज में जहाँ आपका घर है, वहाँ पे यू आर नॉट पेइंग द रेंट एट ऑल, यू आर नॉट पेइंग फॉर अदर थिंग्स एज मच एज यू आर पेइंग हियर इन द सिटी. सो इन सिटी एवरीथिंग इज बीइंग पेड. हर चीज़ आप नॉट पेड इज नॉट बीइंग पेड, बट एक्चुअली यू हैव टू पे इट. आपको पे करना पड़ता है. सो वॉट एवर इनकम यू आर गेटिंग, उसका एक मेजर चंक इज गोइंग आउट फॉर पेमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसमें आपका रहना, खाना, बिजली का बिल हो गया, आपके ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, राइट. देन अगर कभी भी इमरजेंसी में हमें मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होता है इन दैट पर्टिकुलर, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो अर्बन पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इनकम इनएडिक्वेट है, आपकी बेसिक सर्विसेज का एक्सेस, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, हाउसिंग अफोर्डेबल हो गई, वो नहीं है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनका भी आपके पास लैक है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, या आप किसी भी पॉइंट को यहाँ से पकड़ेंगे, एवरी पॉइंट विल अल्टीमेटली टेक यू टू द सेम वेरी आइडिया दैट देयर इज दिस वेरी फीलिंग ऑफ lack of affordability. We are not able to afford the things where we are living. So compared to what is the cost of living here in the urban city, in the urban area, हम उसको मैच नहीं कर पाते हैं. ठीक है, this is the concept of urban poverty. Meaning when you are not able to maintain a standard living or a decent standard of living. We are not talking about कि हम इतना on क्यों नहीं कर रहे that we should be living in a 5-story house or a 10-story house. We are talking about the basic things, basic necessity. ठीक है. Now in order to understand the inequality part जो हमने यहाँ पे बोला, let us have a look at the Gini coefficient. इसको हम आगे भी यूज करेंगे.
जिनी कॉफिशिएंट को अगर आप इन टाइम पीरियड के बीच में देखते हो, दैट इज 1955 टू 1975, तो इंडिया के अर्बन एरिया में इनइक्वालिटी रेट बढ़ रहा है फ्रॉम दिस वेरी वैल्यू टू दिस वेरी वैल्यू। मीनिंग जो हमने शुरू में दो कैटेगरीज करी थी, फॉर्मल इनफॉर्मल, वहां पर अगर आप देखते हो, या इन जनरल आप कहेंगे द वंस हु आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ऑन द अदर हैंड द वंस हु आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन द रिसोर्सेज, दो अलग सेक्ट हो गए, सॉरी सेक्ट नहीं हो गए, ग्रुप हो गए, सेट हो गए। ये जो दो अलग सेट है, इनके बीच में इनइक्वालिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है हमें। इफ यू टॉक अबाउट अर्ली 1900s, तो यहाँ पर शार्प राइज इन इनइक्वालिटी दिख रहा है। यू टॉक अबाउट 2020, तो जैसे आप 2020 तक पहुंचते हो, यू विल सी दैट 2020 आते आते ये इनइक्वालिटी पीक पर होती है। बीच में ये फॉल हुई, फिर ये राइज हुई। 2020 में इसके पीक होने का सबसे बड़ा रीजन था कोविड-19। व्हेन यू टॉक अबाउट कोविड-19 और द पैंडेमिक एक्चुअली tested our resilience in so many ways. अब यहां पर सबसे ज्यादा जो बात किया जाना चाहिए वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। When you talk about out of pocket expenditure, this is that money which you have to spend जब आप हॉस्पिटल में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो एंड यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस, या कोई तरीके का आपने उस तरीके का इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया, या किया भी था तो अब वो आपका पूरा का पूरा कैश जो है वो यूज हो जाएगा, आपकी सेविंग्स जो है वो यूज हो जाएगी इन दैट जस्ट 1 hour और 2 hour। ठीक है, इससे होता क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से, एक तो वैसे भी अब वी आर सीइंग दैट पीपल आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच, और जो सेव किया है कोई बीमारी की वजह से, स्पेशली हम पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, वैसे ही कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा है, अब कोई पैंडेमिक हो गया है उसकी वजह से और सिचुएशन वर्स हो गई है। नाउ यू हैव टू डाइवर्ट योर फंड्स टुवर्ड्स द मेडिकल एक्सपेंडिचर, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सेट असाइड फॉर योर फूड नीड्स, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फैमिली, तो आप उसके लिए कैसे उसको मैनेज करोगे। एजुकेशन, स्कूल फी, हाउ यू आर गोइंग टू पे दैट ऑल्सो। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आप अपने ऑफिस तक जा रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, इनफॉर्मल सेक्टर में भी हो तो वर्क प्लेस तक तो जा ही रहे हो, हाउ यू आर गोइंग टू गो देयर, तो आप पैदल जाना चालू कर दो। एवरीथिंग देयरफॉर हैज इम्पैक्ट, नॉट ओनली फिजिकल इम्पैक्ट बट ऑल्सो द मेंटल इम्पैक्ट, तो मेंटल हेल्थ भी उससे डिजेनरेट होती है, राइट। सो इसीलिए 2020 पर जब हमने कहा कि पैंडेमिक हैड एक्चुअली चेक्ड आर, और इसने जो हमारी जो हमने आज तक अपना डेवलपमेंट किया इन डिफरेंट फील्ड्स, उसको टेस्ट किया है, उसके रेजिलियंस को टेस्ट किया है, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैंडेमिक ऑल्सो। सबसे पहली चीज तो मैंने यहाँ पर डिस्कस की। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट आर द मेजर अर्बन इश्यूज दैट वी आर फेसिंग इन इंडिया। बहुत सारे इश्यूज तो बिगनिंग में डिस्कस कर लिए थे, इस टॉपिक के स्पेसिफिक कुछ ये सब टॉपिक्स हैं अर्बन इश्यूज के। सबसे पहला है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये तो हम देख ही रहे हैं दैट अ बिग नंबर ऑफ यू कैन से देयर इज दिस ह्यूज इनफ्लक्स in the urban area, but this influx is not at all matching the kind of accommodation that we are having here. तो influx ज्यादा है लेकिन employment की जो opportunities हैं वो हमारे पास कम है। So number of people are more, number of jobs available are less, so now everyone is ready to take up whatever job comes their way. ठीक है, not at all matching their skills. जब कोई भी ऐसी जॉब जो आपकी स्किल से मैच नहीं करती, आप उसमें काम करते हैं, यू आर ऑब्वियसली अर्निंग अ लाइवलीहुड, उसमें से आप अपने लाइवलीहुड तो निकाल लेते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी को फायदा होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ यू कैन से ह्यूमन कैपिटल के प्रॉपर स्किल्स को यूज करने से, वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, दैट वी आर लैकिंग हियर। नेक्स्ट इज, सेकेंड इज हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी। जो दूसरा मेजर इशू हम देख रहे हैं दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग। व्हाट वी आर सीइंग बिकॉज ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, हम देख रहे हैं बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं दे आर ऑल्सो कमिंग हियर इन सिटीज में वो आ रही हैं। अब तो सिटी बेसिकली एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी है जहाँ पे टेक्नोलॉजी, आर्ट, क्रिएटिविटी वी आर सीइंग, राइट। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम 1991 के बाद देखते हैं, जब इंडियन इकोनॉमी ब्रॉडर सेंस में ओपन मानी जाती है या देखी जाती है, लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज आर आल्सो कमिंग हियर व्हिच इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लॉट मेनी पीपल हु आर मैचिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, राइट। ये भी हम वहां पर देख रहे हैं। बट व्हाट इज द मेजर इशू
not only with the, I mean, the people who are in the informal sector, in fact, the people who are working in these new corporates or in these new companies which are being opened in India, वो लोगों को भी यहाँ पर जो हाउसिंग है वो आप कहेंगे कि उसके जो प्राइसेस हैं they are very very high, so they are even finding it difficult to live in those high rise buildings. So now think about those people who are not at all able to manage or I mean afford those kind of structures. So वो कहाँ पर रहेंगे? So they are being pushed to live in the slum areas. घीटोज में भी रहना शुरू कर देते, तो घीटोइजेशन का प्रोसेस भी इससे बढ़ना शुरू हो जाता है. तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग. इनफैक्ट द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, अगर आप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, लॉ इन लॉट ऑफ सिटीज अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं. बट व्हाट इज द इशू नाउ वी आर फेसिंग देयर? जो इशू अब हम देख रहे हैं वहां पर वो रिलेट करता है बिहेवियरल चेंज से. व्हाट पीपल हैव स्टार्टेड टू स्पेशली इन दीज इनफॉर्मल सेटलमेंट इज उन्होंने अपने अपने घरों को रेंट पर देना शुरू कर दिया है. दे आर नॉट एट ऑल शिफ्टिंग टू दीज अफोर्डेबल हाउसेज, वेल बिल्ट हाउसेज विच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू देम. In fact, they are renting it out to some other people, earning money out of it, and they themselves are living on the streets and the roads. So on the behavioral front also, lot of work needs to be done, right? The next issue that we are facing here is the rapid urbanization. Rapid urbanization meaning, again the same point, influx is more, but accommodation is less. Accommodation is less. That is why you will find lot of cramped accommodations. एक ही रूम में there are 5 people sharing the room, 2 people share, 2 तो चलो ठीक है, 3 people sharing the room. एक ही वॉशरूम को 5 people, 4 people are sharing, right? So this is the thing that we are seeing here. इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं. Then social inequality. When you talk about inequality could be can be in any of the forms. ये inequality जरूरी नहीं है सिर्फ कास्ट की फॉर्म में हो, जेंडर की फॉर्म में हो, रिलीजन की फॉर्म में हो. ये inequality किसी भी फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकती है. If you look at this setup of cities, most of the inequality is working at the level of income. You will always find a set of people living in the high societies. So there is this big society being formed, being constructed. The people who have constructed this society, they are living next only to that society, but in a more ghettoized setup, right? The standard of living there is very very low, right? तो जब इस तरीके से differences हैं बहुत ज़्यादा in the living condition itself at the first place, and we are talking at the level of again the basic necessities, the basic needs, how can we expect that जो हमारे health parameters हैं किसी भी city के वो बहुत अच्छे रहने वाले? Because when you are talking about the health parameter of a particular city, we are going to take into account everyone who is sharing the same space. That is never going to happen. I mean, ever in future that way, अगर हम उसको इग्नोर करते रहेंगे. So social inequality तो प्रैक्टिस हम देखते हैं होती ही है. और ये किस फॉर्म में होती है कि आप एक्सेस इनकम इनइक्वालिटी के लेवल पर शुरू हुआ, फिर आपकी रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी पर हो जाएगा. रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी से आपकी एजुकेशन, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी पर जाता है, अल्टीमेटली आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज पर जाता है. लॉन्ग रन में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स. हाई लिविंग कॉस्ट रिस्ट्रेन्स द रिसोर्सेज. येस, सिटीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. You talk about the house rent, you talk about the electricity bill, you talk about so many other things. So in any urban space, if you are stepping out of your house, you have to pay certain amount of money to reach to some other place. So standard of living, cost of living, everything is very very high here, right? That is also putting strain on the people who are moving to the urban areas. Next is the rural urban migration. First question to understand here is, why is this migration not stopping? We are not trying to stop this migration, actually we are trying to limit this migration. That means if we want to limit this migration, number one, we need to create some sort of opportunity, job opportunity in the rural area itself. Why is that not happening? We have been seeing that government is coming up with different policies and different government interventions. बहुत सारी government schemes चलाती है government जो rural areas में employment opportunities को create करता है, skills development के लिए, skill development के लिए काम करता है. But then again we are seeing people shifting from rural areas to urban areas. Why is that happening at the first place? We need to see that either the implementation part is not going well, or either the policy is not fitting the need of the area. दूसरी चीज, even if people are shifting to the urban areas, तो पहली बात that should be documented so that we always have sufficient data with us, जिसको ध्यान में रखते हुए policies बनाई जाए cities में urban development को लेकर के.
so that every person should be the part of that policy making thing. तो जब पॉलिसी बने जिसमें कि रियल एस्टेट पर काम किया जाए, हर एक सेक्टर के लिए, हर एक सेगमेंट इन अर्बन स्पेस, हर एक तबके के लिए रहने का जो स्पेस है उनके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो बनाया जाना चाहिए. We need to look at these areas as well. So these are some of the issues, urban issues that we are facing right now in Indian urban space. Okay. Now you also need to understand कि जो urban poverty है और inequality है, ये दो अलग चीजें नहीं है. They are basically pushing one another. ये बिल्कुल अलग नहीं है. एक चीज के होने से दूसरी चीज खुद में खुद बढ़ती जाती है. So they are pushing each other. कैसे? जब आप बात करते हैं economic growth and income disparity की, वैसे भी this particular discussion and this particular coefficient, if you see, this is self-explanatory that in 2020 itself we are seeing कि भाई inequality बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, और 2020 में कोविड पैंडेमिक की हमने बात किया, और वहीं पर हमने ये चीज़ को समझा कि जब हम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, प्लस कोई पैंडेमिक सिचुएशन हो जाता है तो एग्जैजरेट हो जाती है कंडीशन, वहाँ पर और ज़्यादा खराब हो जाती है. तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. फिर भी कुछ पॉइंट हैं जो हम क्विकली एक बार देख लेंगे कि कैसे अर्बन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी लिंक है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है. पहली चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्पैरिटी. अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आर, और व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम आर रिसेंट यू कैन से डेवलपमेंट इज दैट जहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वहाँ पर इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है. Yes, ये कैसे हो रहा है? When I talk about urban setup, आप urban setup की बात करेंगे. इस urban setup में lot of companies will be coming, corporate sector आएगा. I'm simply writing companies. Companies will be coming. ये जो companies हैं, they would require the people who are more skilled, है ना? और ये अपने साथ बहुत सारे investment लेकर के आएंगे. So basically what we are seeing in the urban space, actually, in the urban space, people are basically coming together, bringing funds, पैसा लेकर के आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, creative ideas, they are skillful as well, skilled as well, skills को लेकर के आ रहे हैं, and they are basically coming together to create some sort of impact, some output. तो यहाँ से हम कोई output create करें, कुछ product बना रहे हैं हम अपना, है ना? तो बेसिकली सिटीज तो इस पूरे पर्टिकुलर अर्बन एरिया में एक सेंटर बन जाती हैं. सिटी का जो सेंटर है वो ये कंपनीज बन जाती हैं, जहां पर अलग अलग लोग फंड्स, आइडिया, स्किल्स की वजह से दे आर कमिंग टुगेदर. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एग्लोमरेशन. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ एग्लोमरेशन व्हाट वी आर सीइंग दैट पीपल आर कमिंग टुगेदर. इसका मतलब यही है दैट पीपल आर कमिंग टुगेदर, एंड व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर दे आर पुटिंग देयर मनी, इन्वेस्टमेंट, आइडियाज, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ आउटपुट, जिससे कि सबको इकोनॉमिकली वो बेनिफिट करे, इनकम सबका इंक्रीज हो रहा है, राइट. बट what is also happening parallel to this is ये जो output है this is not equal or equally shared among the people. The ones who are having greater control over the resources are the ones who are taking the big chunk out of this output, and the others who are contributing so much physically to this entire work, they are getting little out of this entire income. So what we are seeing the disparity. आउटपुट तो डेफिनेटली आ रहा है, अपॉर्चुनिटी जॉब की आपको मिल रही है, चाहे आप फॉर्मल में हो, इनफॉर्मल सेक्टर में हो. ज़्यादातर तो इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसने उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम किया, जिसने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बिल्डिंग को बनाया, उसके लिए ये कंपनी जब अच्छा परफॉर्म भी करेगी तो उसमें से उसके लिए कुछ आउटपुट नहीं निकलने वाला है, राइट. दे आर ओनली गोइंग टू गेट वेजेस, और वो भी अगर उनको डिफाइंड वेजेस मिलती हैं तो. This is what we are looking at. So economic growth और income disparity साथ साथ हमें चलती हुई बढ़ती हुई दिख रही है. तो ये हो गया आपस में urban poverty and inequality going hand in hand. दूसरी चीज unequal access to education, employment and healthcare, जिसकी वजह से perpetuate होती है. This perpetuates inequality. ये तो इसमें तो कोई दोराही है ही नहीं, इसमें तो सीधा सा है. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सेटलमेंट एंड लिमिटेड सर्विस एक्सेस. इनफॉर्मल सेटलमेंट मीनिंग व्हेन यू आर नॉट गिवन अफोर्डेबल हाउसिंग, तो आप स्लम्स में या फिर बहुत ज्यादा शेयरिंग में रहने लग जाते हो. दैट क्रैम्प्ड कंडीशन बीइंग क्रिएटेड अराउंड यू. और लिमिटेड सर्विस एक्सेस कुड बी बिकॉज ऑफ कि आपके पास इनकम उतना नहीं है,
आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। तो जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी तो है ही है बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से, और वो अल्टीमेटली पुश करता है किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली को टुवर्ड्स द अर्बन पॉवर्टी। तो आपकी बेसिक नीड्स कभी फुलफिल नहीं हो सकती ना, एंड वेन एवर योर बेसिक नीड्स आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग हु राइट नाउ कुड बी एबल टू अफोर्ड दैट, तो वो उसी चीज़ को हम अर्बन पॉवर्टी कह रहे हैं। Similarly, we have spatial segregation, marginalization. We have discussed these points actually earlier also. So यहाँ से हमें समझ में आता है किस तरीके से urban poverty and inequality are intertwined. ठीक है, तो यहाँ से हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड डायमेंशन ऑफ दिस डिस्कशन. तो पहला पॉइंट तो हमने ये समझा किस तरीके से अर्बन एरियाज में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी साथ साथ चल रहे हैं. ठीक है, दूसरा इसका डायमेंशन है पॉवर्टी पैराडॉक्स इन इंडिया. पॉवर्टी पैराडॉक्स तो हमने भी समझा ही है. इट रेफर्स टू द काउंटर इंट्यूटिव सिचुएशन, मीनिंग होना तो कुछ और चाहिए था जो लगता है देखने से, बट हो कुछ और रहा है, वेयर द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्रीज लाइक इंडिया लीड टू परसिस्टेंट एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. परसिस्टेंट भी बोला गया है. परसिस्टेंट मतलब जो लगातार पॉवर्टी आपको हैंड इन हैंड ही वो चल रहा है. तो ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है, एक ऐसा वेब क्रिएट कर दे रहा है जहां पर हमारे पास ग्रोथ बढ़ने से पॉवर्टी भी साथ के साथ बढ़ती जा रही है. राइट, दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. नाउ दिस इज द सेम टेबल दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जहां पर हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर 2020 में देयर इज द पीक इन द जिनी कोएफिशिएंट, टॉकिंग अबाउट द जो आपकी इनकम इनइक्वालिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी है, रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी की इनइक्वालिटी है, वो उसकी बात करता है. तो दैट इज सिंपली गोइंग अप. नाउ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉवर्टी पैराडॉक्स, कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये पैराडॉक्स हो रहा है, अब उसको समझना जरूरी है. पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स. जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में बात किया, एनीवन हु इज इनटू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसने बिल्डिंग बनाया, वो बिल्डिंग जो है वो कंपनीज को रन कर रही है उस बिल्डिंग से, और दे आर मेकिंग द प्रॉफिट. सो द पीपल हु आर मोर स्किल्ड एंड प्रोफेशनल working in that company, they are going to get the hikes in their salary and all, but the worker, construction worker जिसने वो building बनाई, that is obviously not getting that kind of benefit or profit out of it. We are not at all saying कि उसको भी उसके बराबर मिलना चाहिए, but what we are seeing is that everyone is sharing the same urban space, but on the one hand we are seeing that ones who are more skilled and getting more job opportunities, उनके पास का और उनका जो लाइफस्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज वे टू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग गोइंग ऑन विद दिस वर्कर हु इज इनटू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. व्हाट वी आर आस्किंग फॉर और इज डिमांडिंग फॉर इज और इज लुकिंग फॉर इज कि एक स्टैंडर्ड डिसेंट लाइफ तो उसके भी पास हो. वो कैसे इंश्योर हो सकता है, जब आपके लेबर लॉज को इनफॉर्मल सेक्टर में भी अच्छे से लगाया जाए, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे से अवेलेबल होने चाहिए लोगों के पास, जब जितने लोगों का माइग्रेशन हुआ है उनका डेटा हमारे पास होना चाहिए और उनके लिए नए नए क्रिएशन ऑफ जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, एक्सेस टू एजुकेशन होना चाहिए, ताकि वो आगे अपने बच्चों के लिए फ्यूचर उनका जो है वो अपॉर्चुनिटीज उसके लिए क्रिएट कर सके. राइट, तो वो चीज़ है. तो जब तक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स हैं, तब तक व्हाट वी आर सेइंग कि पॉवर्टी पैराडॉक्स तब तक रहेगा. सेकंड, रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड ओवरबर्डन इंफ्रास्ट्रक्चर. एट द फर्स्ट प्लेस ओनली वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस माइग्रेशन इज कंप्लीटली गोइंग ऑन, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है. राइट, कोविड-19 के समय पर जो हमने सबसे बड़ा हमने सबसे ज्यादा न्यूज जिसके बारे में सुना वो माइग्रेशन को लेकर के ही था. बहुत सारे वर्कर्स जो या बहुत सारे लोग जो दूसरी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में आकर के काम कर रहे थे, इट बिकेम वेरी टफ फॉर देम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन थिंग. अंडरस्टैंड दिस. इनइक्वालिटी उसी समय पर बहुत ज्यादा जिनी कोएफिशिएंट से देखा, माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम हमने उस समय पर देखा. पीपल बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फाइंड मीनिंगफुल जॉब्स बैक देयर इन देयर होम टाउन्स. इफ वी आर समहाउ एबल टू मैनेज दीज रूट कॉजेस, तब जाकर के हम देख सकते हैं कि रीजनली भी डेवलपमेंट इक्वल लेवल पर होता है. पॉवर्टी पैराडॉक्स को खत्म करने के लिए इन रूट कॉज पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड जॉब सिक्योरिटी. इनफॉर्मल इकोनॉमी है तो देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी अराउंड यू. एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू विल बी लेड ऑफ, आपको जो है वो वर्कफोर्स से निकाल दिया जाएगा. एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ टाइम आपके पास अगर उतना सेविंग नहीं है कि आप एक डिसेंट लिविंग अपने लिए अफोर्ड कर सको फॉर नेक्स्ट 6 months लेटर से, where you are going to go. People sometime therefore turn to the crime as well. अपने लाइफ को रन करने के लिए, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, अपने लिए कुछ ऑप्शंस बनाने के लिए. This is another thing which is pushing people, and it is then very difficult for a person to come out of that web, that cycle. Next is housing and land market failure. What we are seeing now is affordable housing ना होने की वजह से
पीपल आर बीइंग पुश्ड इनटू द पॉवर्टी. पॉवर्टी का सीधा सीधा मतलब, जहां पे भी मैंने पॉवर्टी बोला मतलब स्टैंडर्ड लिविंग आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो. You are not able to afford, let us say, the public transport also, right? 3 टाइम का खाना आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. सो व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, फूड के लेवल पर, क्लॉथ के लेवल पर, घर के लेवल पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लेवल पर, ट्रांसपोर्ट के लेवल पर, all these factors are coming together to push an individual towards more, you can say, worst part of poverty. That is what we are seeing. And inequality and social exclusion. Inequality works in many forms, as we have discussed earlier. Class, caste, religion, income, हर लेवल पर जो है ये वर्क करती है. In cities, what we are seeing, income level पर it is working, and we can clearly see that. So the ones who are able to afford a very good life, they are living in very big bungalows and all, they are easily able to access all the resources and everything. The ones who are not able to earn that much, they are basically living in the cramped conditions. Number one, they are not able to afford the private hospital जहाँ पर जाती अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए तो you have to wait for the entire day, right? And then also वहाँ पे भी आपको जो है हर तरीके की सर्विस अवेलेबल नहीं होती है. सो व्हाट इज हैपनिंग, अब सेगमेंट, एक पूरे शेयर्ड स्पेस का सेगमेंट, मतलब अर्बन सेटलमेंट का एक सेगमेंट तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा चीज़ों को. उनका लाइफ स्टैंडर्ड ही सही नहीं, मतलब सही नहीं पहुंच पा रहा है जो होना चाहिए. पूरे फैमिली में जो है डिजीज रन कर रही है. एजुकेशन की अगर आप बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज बच्चे ग्रैब ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है. तो वो फैमिली एक स्टैंडर्ड डिसेंट लिविंग फैमिली पर जब पहुंचेगी नहीं, आने वाले उनकी जनरेशन कैसे पहुंचेगी? दे विल नेवर बी एबल टू रीच देयर. This is something we need to understand. Ultimately, everyone is being pushed into the poverty. So poverty is not something which happened to anyone all of a sudden or to a population all of a sudden. It happens very slowly. If remain unchecked, तो फिर वो लॉन्ग रन में पूरी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है. दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू द पॉवर्टी पैराडॉक्स. ठीक है. नेक्स्ट डायमेंशन इज अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटीज. अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट होना कैसा चाहिए, या जो स्मार्ट सिटी का मॉडल है. स्मार्ट सिटी के मॉडल में हमने कोशिश ही यही की कि सिटीज को स्मार्ट बनाया जाए. स्मार्ट मतलब ऐसी लिविंग हो जो सस्टेनेबल हो, यानी कि जिससे एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा ना, क्योंकि पॉल्यूशन होगा अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ विल बी गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट. ठीक है. एंड इस कैटेगरी में जब हम कहते हैं कि ना कि ह्यूमन लाइफ इज गेटिंग अफेक्टेड, यहाँ पे सबसे पहले जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, दे आर द वंस हु आर एट द मार्जिन्स ऑफ बीइंग गेटिंग अफेक्टेड. तो सबसे पहले जो इनफॉर्मल लिविंग में रह रहे हैं ना, वही लोग अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो फिर अफोर्ड भी नहीं कर सकते मेडिकल केयर को. सो अर्बन डेवलपमेंट की जब बात की तो स्मार्ट सिटीज जो है वो मॉडल होना चाहिए. येस, वी आर इम्प्लीमेंटिंग द स्मार्ट सिटी मॉडल, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में भी आते हैं. व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दोज इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन से प्रॉब्लम्स, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे. तो स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं, इसके ब्रॉडर 4 ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्लियरली. प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन लिविंग, एड्रेस द अर्बनाइजेशन चैलेंज. सस्टेनेबल लिविंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरा जंगल काट करके सिर्फ रियल एस्टेट वहां पर बना दिया है, तो पॉल्यूशन डिस्पर्स कैसे होगा एयर पॉल्यूशन, या बारिश कैसे होगी वहां पर? वो तो होगी ही नहीं वहां पर. फॉरेस्ट प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बारिश में रेनफॉल करवाने में. इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, हाउ वी आर गोइंग टू सस्टेन फॉलो? सो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. दिस इज द हाई टाइम नाउ. देन अट्रैक्ट इन्वेस्ट. सो वी नीड टू बेसिकली यहाँ पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है. किस चीज के बीच में? अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनानी है हमें, स्पेस भी चाहिए है, बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंट को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है. देन अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत है. गवर्नमेंट इज रेडी टू इनवाइट, और गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कि वो आए यहाँ पर. हम अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी फॉरेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कम समय में बहुत अच्छी बिल्डिंग्स जो वेदर रेजिस्टेंट हों, जो कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है उसको रेजिस्ट कर सके, उस तरीके की रेजिलिएंट बिल्डिंग्स को जो है हम बनाएं. देन लिंक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विद जॉब क्रिएशन, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. स्मार्ट सिटीज का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हम करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो हेल्प करे जॉब क्रिएशन में या सोशल जस्टिस. स्मार्ट सिटीज ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसपोर्ट के अच्छे मीन्स एंड मोड्स ना. तो आपके अगर ट्रांसपोर्ट के मीन्स एंड मोड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली की ही बात करते हो तो मेट्रो इज वेरी वाइटल फॉर दिल्ली. लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल थ्रू मेट्रोज.
तो अगर आज एक दिन के लिए मेट्रो बंद कर दी जाए तो पूरी दिल्ली हॉल्ट हो सकती है. पीपल आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मोड. एक तो जल्दी आप पहुंच जाते हो, एंटायर मेट्रो इज एसी, पूरे आपको आराम से जो है आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, प्लस जो फेयर है दैट इज वेरी वेरी लेस. वहीं पर अगर आप कैब बुक करते हो, आप बाय रोड जाते हो, नंबर वन ट्रैफिक इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. यू स्पेंड मोर मनी ऑल्सो, एनवायरमेंट तो पॉल्यूट हो ही रहा है, मोर नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड, मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, मोर एयर पॉल्यूशन. ये भी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है. एंड अलाइनिंग इट विद द UN SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके साथ अलाइन करने की कोशिश की गई है जब हम स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं. अगर आप बात करते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितना है, येस इट इज गोइंग वेरी गुड, बट लॉट ऑफ हर्डल्स वी आर आल्सो सीइंग. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो क्या है कि स्मार्ट सिटी मतलब ऐसी सिटी हो जहाँ पब्लिक सेफ्टी मेजर्स हों, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो, एजुकेशन के अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए. ये वो बेसिक मॉडल है. अब इस मॉडल से समझ लीजिए या इन जनरल जो हमारे पूरे टाइम स्पैन में अर्बन डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी रही है, वहाँ से जो हमने लर्निंग्स ली हैं उनके बारे में यहाँ पर बात किया गया है. पहली लर्निंग जो है हमारे पास, और ये आपका वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, जब आप अपना मेंस का आंसर लिखें वे फॉरवर्ड में आप इन एरियाज पर बात कर सकते हैं. पहला है फोकस ऑन इंक्लूसिविटी एंड ओवर स्केल. मीनिंग जब आप अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप अर्बन डेवलपमेंट में ये पॉइंट पर ना बात करें कि व्हाट इज द स्केल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सिंपली बाय लुकिंग एट कि कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स या कितना वर्टिकली जो आपकी लिविंग है वो बनती जा रही है, कितने हाईवेज हमने बना दिए, कितने एक्सप्रेसवेज हमने बना दिए, कितनी चमकने धमकने वाली बिल्डिंग्स में. व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हर बिल्डिंग अफोर्डेबल लिविंग के हिसाब से बननी चाहिए. It should be made in a manner that everyone who is sharing the space in the urban life, whether coming from informal sector or from formal sector, वो लोगों का income affordability के हिसाब से they could be able to live in a particular society, in a particular house. यही पॉइंट लिखा गया है कि इंक्लूसिविटी पर फोकस होना चाहिए. रोड जो है वो ऑल वेदर रोड्स होने चाहिए, वेल मेटल्ड रोड होने चाहिए, वेल कनेक्टेड होने चाहिए, सो दैट सही वक्त पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस या इस तरीके की जो हमारी सर्विसेज हैं वो सही स्पॉट पर सही समय पर पहुंच सके, ना कि बहुत छोटी छोटी नैरो स्ट्रीट्स होने चाहिए. सेकेंड जो हमने लर्निंग लिया है वो है एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव स्टडी. स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, तो हम दो मॉडल्स वहाँ पर दो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स देखते हैं. पहला है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ पर चाइना ने फोकस किया है ऑन कंस्ट्रक्टिंग दीज बिग बिल्डिंग्स, बिग कॉर्पोरेट हब्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और इस तरीके की चीज़. दूसरा उनका मॉडल जो है वहाँ पर फोकस रहा है लोकलाइज डेवलपमेंट के ऊपर, जहाँ पर विलेजेस को रोड से कनेक्ट किया गया है, ज़्यादा फोकस उस पर है. मेटल रोड है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड है. रूरल एरियाज को हॉस्पिटल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश की गई है. ब्रिजेस, कलवर्ट्स पर ध्यान दिया गया है. वेल कंस्ट्रक्टेड ड्रेन्स, सीवर सिस्टम, इस पर बात किया गया है. एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड थ्रू दिस स्टडी दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द इनकम डिस्पैरिटी इन दिस एरिया वेयर at the regional level lot of development has taken place, वहाँ पर वो disparity बहुत कम है. People are able to afford all of these things और quality life अच्छा है as compared to the one जहाँ पर हमने सिर्फ बड़े structures पर बात किया है. तो comparative study से भी हमें ये समझने को मिलता है that construction should be affordable, not affordable, sustainable, but and also inclusive. Next is effectiveness of community driven initiative. Now फ्रॉम वन ऑफ द स्टडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की एक स्टडी में ही एक चीज़ हमें क्लियरली समझ में आती है. 2023 की एक स्टडी है जिसमें ये क्लियरली बताया गया है दैट अनटिल एंड अनलेस द कम्युनिटी पार्टिसिपेट्स इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तब तक उस पर्टिकुलर आइडिया को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है बिहेवियर चेंज की. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दैट दैट नेबरहुड प्रेशर, तो आप देखते हो कि आपने बिहेवियर चेंज लाया, आपके नेबरहुड में बिहेवियर चेंज लाया, आपकी सोसाइटी में बिहेवियर चेंज हुआ. वेरी सिंपल थिंग, जैसे कि कचरा, कूड़ा की बात करते हो आप, कूड़ा एक जगह पर लोग पीपल आर डंपिंग इट, है ना. तो इफ somebody starts to take it seriously, not ignoring it altogether, your neighbors will be taking it seriously, the entire society is taking up seriously, you will start to see that a change is now going to come up. Similarly, we have talked about the affordable housing in cities जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. अगर उसको सही तरीके से अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं एंड वी मेक इट
compulsory for the people जिनके नाम पर घर दिए गए हैं affordable houses, that they should be living in those houses only, not renting them to somebody else and fetching money out of it, but instead वो उन्हीं में रहें। तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे जो रोड साइड पर लोग रह रहे हैं या बहुत ही खराब कंडीशंस में रह रहे हैं वो डायरेक्टली उन घरों में रहेंगे, उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अल्टीमेटली आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होने से, स्टैंडर्ड मीनिंग बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, साफ सुथरा घर होना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, क्लीन वाटर क्लीन फूड होना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए, विच इज़ देयर इन आर कंट्री, जो कि इजीली अवेलेबल करवाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट क्योंकि हम देखते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, बिहेवियर चेंज नहीं लाना चाहते लोग, तो नो बिग चेंजेस आर कमिंग, we should be working at that level also. So these are the learnings जो हम recent infrastructure project से देख रहे हैं। Now last but not the least, towards a sustainable urban growth, अब हम बात करेंगे इन सारे पॉइंट्स को क्लब करके जितना हमने डिस्कशन किया उनमें से क्या आउटकम है, ठीक है, किस तरीके से ये सस्टेनेबल लिविंग की तरफ हम मूव कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। सो सस्टेनेबल लिविंग होने के लिए आपकी जो अर्बन डेवलपमेंट है, नंबर 1 इंक्लूसिव होनी चाहिए, ग्रीन कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल साफ करते जा रहे हैं, रियल एस्टेट खड़ा करते जा रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। अफोर्डेबल लिविंग जैसे हमने बोला वो होना चाहिए हमारे पास। प्रॉपर आपके पास जो प्लानिंग है सिटी की वो होनी चाहिए ताकि हैफेजर्ड मैनर में कहीं पे भी कोई भी बिल्डिंग ना खड़ी कर दी जाए। प्रॉपर सीवेज सिस्टम के जो है उसको पहले बनाया जाए, उसके बाद में जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कोई भी किया जाए। नाउ राइट नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग एज अ कंट्री इज अर्बन डेवलपमेंट की तो हम बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की तो हम बात करते हैं, बट स्मार्ट सिटीज़ एक्चुअली सेंटर ऑफ सिटी में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिटीज़ तो ऑलरेडी पहले समय से बनी हुई है एंड हेविली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और चेंजेस नहीं कर सकते हो। व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पर शुरू करते हैं अब नए तरीके के मॉडल्स को बनाना, और कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम अकोमोडेट कर सकें जो नए लोग आ रहे हैं या जो नया वर्कफोर्स इसमें एंटर हो रहा है। सेकेंड है हमारे पास पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिटीज़ में भी अर्बन डेवलपमेंट में जो पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। वी आर सीइंग दैट इन सिटी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेटिंग, तो पॉपुलेशन तो यहाँ पर ज़्यादा ही है। ज़्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और कियोस्क फ्री रखने के लिए व्हाट वी रिक्वायर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर। तो यहाँ पर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग दोनों बहुत बेटर होना चाहिए, और वो इस तरीके से होना चाहिए दैट एवरीवन शेयरिंग द स्पेस इन द अर्बन सेंटर्स उनको ध्यान में रख के बनाया जाए। नेक्स्ट इज कम्युनिटी इनिशिएटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए ठीक है, फिर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जो खुद से वो ले रहे हैं, एनजीओस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो अवेयरनेस ही है, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। इग्नोरेंस शुड नॉट बी देयर, कि आप सिर्फ इग्नोर करते जा रहे हैं, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनीबडी। एंड लास्ट टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स, जो भी हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं द टेक्नोलॉजिकल एरेना, वो किस तरीके से हम जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हम स्मार्ट सिटी का मॉडल भी कहते हैं। सो इफ वी वर्क इन दिस मैनर कि चारों चीज़ों को हम एक साथ रख करके सिटी के डेवलपमेंट की तरफ बात करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ बात करते हैं, तो डेफिनेटली भले ही थोड़ा स्लो होगा बट डेफिनेटली इट विल हैपन कि हम एक बेटर अर्बन डेवलपमेंट की तरफ, एक बेटर प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट से उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव कवर्ड द 4 डायमेंशंस। ये जो 4 डायमेंशंस हमने कवर किए हैं ये मिल करके इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं। आपके मेंस में जब भी क्वेश्चन आए आप इसमें से डेटा यूज़ कर सकते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हैं। हैंडआउट्स आर प्रोवाइडेड टू यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, मेंटोरा IAS टेलीग्राम चैनल। यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड द हैंडआउट एज वेल, राइट। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने मेन से रिलेटेड एनालिसिस किया इस टॉपिक का। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिए। डेटा को कैसे इसमें ऐड करना है, क्या वैलिडेशन किया जा सकता है, वो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन वेयर वी विल बी एनालाइजिंग सम न्यू टॉपिक्स, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। टिल देन कीप रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।